ওকে, ফার্স্ট যেটাতে আমি যাব আজকে সেটা হচ্ছে যে তোমাদের কালকে যেটা বলেছিলাম যে 3টে টেবিল থাকে, 3টে টেবিলের এতে আমি যাব আর কি। ফার্স্ট কি কি টেবিল থাকে সেটা একটু বলে দেওয়া যাক। ফার্স্ট কি থাকে আমি বলেছিলাম, নেবার টেবিল, টপোলজি টেবিল আর রাউটিং টেবিল। सो बेसिकली व्हाट इज नेबर टेबल? नेबर टेबल मीन्स, नेबर टेबल मतलब तुम्हारा जो नेबर्स है उसके बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन इस टेबल के अंदर रहता है। कौन सा वो टेबल के अंदर जो रहता है, देखो यहाँ पर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल इन EIGRP, and each EIGRP router maintains this table that lists adjacent routers। एडजेसेंट मतलब तुम्हारा पास में जो राउटर है, मतलब तुम्हारा जो नेबर है, तुम्हारा पास जो नेबर्स है उसके राउटर का इंफॉर्मेशन जो टेबल्स है वो इसके पास भी रहता है। And there is a table, neighbor table for each protocol that EIGRP supports। ऐसा कोई प्रोटोकॉल अगर होगा कि वहां पर और कोई चल रहा है, समझ लो कि एक EIGRP है, उसके साथ एक, उसका बगल में और एक IGRP है, राउटर चल रहा है, उसके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है EIGRP का, उसका इंफॉर्मेशन भी इसके पास रहेगा, क्योंकि वो भी तो इसका नेबर है। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি একটা EIGRP দেখছি, এমন হতে পারে যে একটা EIGRP নেটওয়ার্কের সঙ্গে একটা IGRP নেটওয়ার্ক কানেক্টেড আছে। সো দিস ইজ কল্ড রিডিস্ট্রিবিউশন। তো এখানেতেও EIGRP যখন কমিউনিকেট করবে বা কার সঙ্গে করবে, তার ইনফরমেশন ওর কাছে থাকবে ওর নেবার হিসেবে। তার ফলে EIGRP সাপোর্টেড যে সমস্ত প্রোটোকল আছে, যেমন IGRP, বিকজ EIGRP ইজ টোটালি বিল্ট অন IGRP, সো অটোমেটিক্যালি IGRP সাপোর্টেড যে সমস্ত রাউটার আছে তাদের যে ইনফরমেশন সেটাও কিন্তু এর কাছে থাকবে। সো দ্যাট ইজ ক্লিয়ারলি রিটেন হিয়ার। এবার বলেছে কি কি থাকবে, what should be the contents of a neighbor table? The first one is the neighbor address। Obviously we require the neighbor address। हम लोगों को neighbor address चाहिए कि कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसका एड्रेस कहाँ है, क्योंकि हमको कम्युनिकेट करना है। So that is happening। Second is hold time, or sometimes you know it is sometimes it is known as hold up time। So basically actually when we are communicating, जब एक EIGRP राउटर और एक राउटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब क्या, पैकेट भेजना है, तो मेरे को अगर तुमको पैकेट भेजना है, तो अगर तुम बिजी हो तो मैं स्लोली हम पैकेट भेजेंगे, सो आई हैव टू वेट फॉर इट। तो होल्ड टाइम है वो, आप होल्ड अप टाइम, तो कितना टाइम तक वो वहां पर रहेगा, दैट इज द सेकेंड। नेक्स्ट इज स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर, SRTT। कल जो नोट मैंने अपलोड किया था ना, उसमें देखोगे कि फर्स्ट पैरा में SRTT रहेगा। तो व्हाट इज SRTT? बेसिकली द SRTT इज it is basically, you can say it is the average time। एवरेज टाइम मीन्स मैंने तुमको पैकेट भेज दिया और तुमने रिसीव किया, ये जो टाइम गैप, दैट इज द SRTT। মানে আমি একটা প্যাকেট পাঠাচ্ছি তোমাকে, তুমি প্যাকেটটা রিসিভ করছো, জাস্ট ফর এক্সাম্পল আমি বলছি, সে আমি 1:05 তোমায় পাঠালাম, তুমি পেলে 1:06। তার মানে SRTTটা কত হলো? 1 মিনিট। 1 মিনিট, 1 মিনিট। সো এইটা হচ্ছে ব্যাপার, যে আমি প্যাকেটটা সেন্ড করছি, তুমি প্যাকেটটা রিসিভ করছো, দ্য টাইম গ্যাপ বিটুইন দ্যাট ইজ কল্ড দি SRTT। দ্য ফোর্থ যে কন্টেন্টসটা, দ্যাট ইজ কল্ড কিউ কাউন্ট। কিউ কাউন্ট মানেটা কি? না, আই এম সেন্ডিং দ্য প্যাকেট টু ইউ বিকজ ইউ আর মাই নেবার, সো আই এম সেন্ডিং দ্য প্যাকেট টু ইউ, বাট দ্যাট শুড ফলো এ কিউ জাস্ট টু অ্যাভয়েড দ্য হ্যাপাজার্ড কমিউনিকেশন। আমি যখন একটা পাঠাচ্ছি, আমি একটা কিউ করে পাঠাচ্ছি, ফার্স্ট প্যাকেট, सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट। सो दैट इज टोटली मेंटेन बाय दिस क्यू काउंट। ये मैंने जो पैकेट तुमको भेज रहा हूं, भाई तुमको कितना पैकेट भेजा? 10 पैकेट्स। तुमको कितना मिला? 3 पैकेट। तो कितना बाकी है? 7 पैकेट्स। तो ये जो 7 पैकेट्स स्लोली इट इज कमिंग टू यू थ्रू इट फॉलोइंग ए क्यू। तो उस क्यू में कितना पैकेट है, ये है क्यू काउंट।
Is it clear or not? হ্যাঁ স্যার, এর জন্য কি স্পেসিফিক রুল থাকে নাকি, মানে এই কিউ কাউন্ট না, এটা হচ্ছে অ্যাজ পার সিসকো যেরকম ভাবে তোমাকে এটা করে দিয়েছে সেই অনুযায়ী কাজটা হবে। এখানে তোমার আমার ইন্টারভেনশনে কিছু হবে না। আচ্ছা আচ্ছা এটা অ্যাজ পার দ্য সিসকো, সিসকো যেভাবে এটাকে করে দিয়েছে সেই সেই অনুযায়ী এটা কাজটা হবে। এখানে তুমি আমি কিছু করতে পারবো না এই জায়গাটায়। নেক্সট কি বলছে? সিকোয়েন্স নাম্বার। হোয়াট ইজ সিকোয়েন্স নাম্বার? সিকোয়েন্স নাম্বার মানে হচ্ছে সে আমি ফার্স্ট রাউন্ডে তোমাকে 10 কিলোবাইট ডেটা পাঠাচ্ছি, নেক্সট রাউন্ডে আবার 10 কিলোবাইট পাঠাবো। তার মানে একটা টোটাল ডেটাকে আমি ভাগ ভাগ করছি। তার মানে আমার যদি টোটাল ডেটাটা 20 কিলোবাইটস এর হয়, সেখানে যদি ধরে নিই যে 2 কিলোবাইট করে, সে ধরো আমি এটাকে একটু অন্যভাবে বলছি, টোটাল 20 কিলোবাইটস এর ডেটা। এবার আমার 2 কিলোবাইটস করে আমার প্যাকেট আছে, তার মানে হাউ মেনি প্যাকেটস আর দেয়ার? 10। ইচ ক্যারিজ 2 কিলোবাইট ডেটা। এবার আমি প্যাকেট 1 প্যাকেট 2 করে পাঠাচ্ছি। সো অটোমেটিক্যালি হুইচ উইল বি দ্য লাস্ট, দ্যাট শুড বি দ্য টার্মিনাল এরিয়া। মানে লাস্ট যেটা যাচ্ছে তারপর থেকে তো তুমি আবার কাউন্ট করবে। ধরো আমি 20টা প্যাকেটের মধ্যে 10টা প্যাকেট তোমাকে পাঠিয়ে দিলাম, বাকি এখনো 10টা বাকি। আর তুমি কি করে বুঝবে, রাউটার ইআইজিআরপি রাউটার কি করে বুঝবে যে কতগুলো প্যাকেট বাকি আছে? समझ लो 20 पैकेट्स आर देयर, आई हैव टू सेंड टू यू, तुमको भेजना है हमको। पहला 10 पैकेट तुमको मिल चुका है, तो बाकी कितना रह गया? 10। तो तुमको कैसे, तुम मतलब तुम एक ईआईजीआरपी राउटर हो, तो तुमको भाई कैसे पता चलेगा कि कितना नंबर तक मेरे को मिला है और नेक्स्ट लॉट में कौन सा नंबर से शुरू होगा, कहां से खत्म होगा? तो ऑब्वियसली देयर शुड बी ए नंबर। जैसे कि तुम्हारा स्टूडेंट कोड है, स्टूडेंट कोड से पता चलता है भाई कितना स्टूडेंट है यहाँ पर, कितना तक ये मेरा एग्जामिनेशन कॉपी चेकिंग होगा, कहाँ से हमको नेक्स्ट डे में शुरू करना है कॉपी चेकिंग। उसी तरह यहाँ पर भी वही होता है कि एक सीक्वेंस नंबर होता है, जो लास्ट पैकेट काउंटिंग होता है उसमें सीक्वेंस नंबर जुड़ देता है। तो उससे उसके बाद जब ये सीक्वेंस नंबर या जीआरपी राउटर वहां पर डाल दिया, तो उसके बाद उसको ये फ्लैग के माफिक है कि भाई ये लास्ट मैंने पैकेट, नेक्स्ट जो पैकेट आएगा तो उसका सीक्वेंस नंबर अगर 10 होगा तो नेक्स्ट पैकेट शुरू होगा 11 से। अगर ये সিকোয়েন্স নাম্বার ওয়াপার नहीं रहेगा, এই সিকোয়েন্স নাম্বারের জায়গাটা যদি ওখানে না থাকে, তাহলে তুমি বুঝবে কি করে যে তোমার লাস্ট প্যাকেট কোনটা, পরের প্যাকেট কোনটা, তারপরের প্যাকেট কোনটা? So you can count, but which one is the my first packet and which one is my last packet? How could you decide? मैंने देख लिया तुम लोगों का क्लास है भाई 10 स्टूडेंट्स है, फिर मैं मेरे को कैसे पता चलेगा हु इज रोल नंबर 1 एंड हु इज रोल नंबर 12? मैंने काउंट कर लिया कि 10 है, लेकिन इस 10 के भीतर कौन सा स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, कौन का 10 है, कौन का 9 है, कौन का 8 है, हमको कैसे पता चलेगा? कि मैंने काउंट किया भाई रोल नंबर 1 चले आओ, चले आए, 2 चले आओ, 3 चले आओ, मतलब मेरे पास 3 तक है। तो उसके बाद हमको पुकारना पड़ेगा भाई 4 कौन है, चले आओ, तब जाके 4 आया। So that is happening in case of sequence number. Is it clear or not? হ্যাঁ স্যার। বাকিরা পরিষ্কার না পরিষ্কার না একটু বলো। মনীষ? Yes sir, clear. আচ্ছা ঠিক Yes আছে, sir. ওকে। নেক্সট হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে নেবার টেবিল। মানে আমার নেবার টেবিলে কি কি থাকবে, এটা হচ্ছে নেবার টেবিল। নেবার অ্যাড্রেস থাকবে, হোল্ড টাইম থাকবে, যে আমি কতক্ষণ এটাকে হোল্ড করে রাখতে পারি, স্মুথ রাউন্ড ট্রিপ টাইমার থাকবে, আর কিউ কাউন্ট থাকবে, আর থাকবে সিকোয়েন্স নাম্বার। ওকে, সো নেক্সট যেটা আসছে, সো সেটা হচ্ছে টপোলজি টেবিল। হোয়াট ইজ টপোলজি টেবিল? টপোলজি মিনস দি অ্যারেঞ্জমেন্ট। সাপোজ এইটাকে চিন্তা করো, এই টেবিল EIGRP राउटर, इसको छोड़ दो, सिंपल थिंक अबाउट टोपोलॉजी। व्हाट इज टोपोलॉजी? टोपोलॉजी के मतलब क्या होता है कि भाई मेरे पास कितना नेटवर्क डिवाइसेस है, वो कैसे
कम्युनिकेट कर रहा है लॉजिकली, और फिजिकली इसका कनेक्टिविटी क्या है। फिजिकली हर एक जो नेटवर्क डिवाइसेस है ये कैसे जुड़ गया, और दूसरा है कि इसका काम करने का तरीका क्या है, এই ডিভাইসগুলো কমিউনিকেট করবে কি করে। So one is physical, another is logical. So as a whole, you can say that it is a topology. So same thing is happening in case of EIGRP. What is happening? कि हर एक राउटर, EIGRP राउटर जो होता है, हर एक EIGRP राउटर के पास, राउटर के साथ जुड़ा हुआ उसका टोपोलॉजी होता है कि भाई उसके साथ कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, होस्ट क्या है, वगैरह 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 सब कुछ रहता है। तो वो उसका टोपोलॉजी है। तो जब भी कम्युनिकेशन होगा तो ये टोपोलॉजी भी एक्सचेंज होगा कि भाई मेरा ये टोपोलॉजी तुम लो, तुम्हारा ये टोपोलॉजी हमको दो। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है कि मेरा टोपोलॉजी के अंदर कोई भी होस्ट तुम्हारा टोपोलॉजी के अंदर कोई भी होस्ट के साथ कम्युनिकेट करना, तो अगर टोपोलॉजी हम लोगों के पास नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा राउटर के साथ कौन सा नेटवर्क जुड़ा हुआ है, কার সঙ্গে কে আছে আমি কি করে জানবো। আমি বললাম আমার সঙ্গে 5 আছে, তুমি বললে তোমার সঙ্গে 6 আছে, ও বললো 7 আছে। তার মানে আমাদের কাছে ক্লিয়ার, আমার কাছে 5 6 সাথে রেকর্ড আছে, 6 এর কাছেও 5 6 7, 7 এর কাছেও 5 6 সাথে রেকর্ড আছে। এবার আমার 5 এর একজন সে কমিউনিকেট করতে চাইছে 7 এর সঙ্গে, আমি কি করব? আমি তো জানি যে 7 কোথায়, আমি ইজিলি ফরওয়ার্ড করে দেবো। বাট ইফ আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট এনি নলেজ where is the 7 network is attached, then how could I send the data? मेरे को पता होना चाहिए। मेरे पास अगर जानकारी होगा कि भाई जाकार्ता कहां पर है, तो हमको पता चलेगा अच्छा जाकार्ता यहां पर है, तो ऐसे ही वहां पर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जाकार्ता क्या है, जाकार्ता कौन सा जगह में है, कौन सा स्टेट में है, कौन सा कंट्री में है, कौन सा सब कॉन्टिनेंट पे है, मेरे पास कुछ पता नहीं, तो हम कैसे वहां पर पहुंचेंगे? ये तो नामुमकिन है ना। तो इसीलिए ये टोपोलॉजी टेबल इज वेरी वाइटल। हर एक एआईजीआरपी राउटर एक टोपोलॉजी टेबल बनाता है। कैसे बनाता है देखो, दिस इज मेड अप ऑफ ऑल द EIGRP राउटिंग टेबल्स इन द ऑटोनोमस सिस्टम। यहाँ पर भी ऑटोनोमस सिस्टम का कॉन्सेप्ट है जो मैंने कल बताया। नेक्स्ट क्या है? द EIGRP डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम डुअल। कुछ प्रॉपर्टीज डिस्टेंस वेक्टर के माफिक होगा, टोटली डिस्टेंस वेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट। कैसे डिपेंडेंट? ये डुअल जो एल्गोरिथम है, ये डुअल एल्गोरिथम वहां पर चलता है, एंड थ्रू दिस डुअल एल्गोरिथम it takes all the information of regarding the neighbor table and topology table and calculates the lowest cost routes to each destination। मेरा पास जितना भी रूट्स है वहां पर जाने के लिए लीस्ट कॉस्ट रूट हमको चाहिए। दैट शुड बी माय मेट्रिक, दैट शुड बी डिपेंडेंट ऑन द मेट्रिक कि भाई मेरे यहाँ से मनीष के पास जाने के लिए 4 रूट्स हैं, तो ये जो चारों रूट्स है, इस चारों रूट्स के अंदर कौन सा रूट है जिसका कॉस्ट सबसे कम है। सो दैट इज माई दैट शुड बी माई एक्चुअल path, and that path is called successor route in the topology table। मतलब जब भी हम मनीष के साथ बात करेंगे, कुछ भेजना चाहेंगे, तो ये सक्सेसर रूट के थ्रू से ही हम इसको भेजेंगे। दैट इज माई प्राइमरी रूट। So that is here written. By tracking this information, EIGRP routers can identify and switch to alternate routes quickly. And this primary route or successor route information is placed in the routing table. Now, second point is, you may ask me that, sir, if this route fails, what will happen? हो सकता है, এটা হতেই পারে যে আমার একটা রুট আছে, কোনো নেটওয়ার্কের কোনো একটা ইস্যুর জন্য আমার এই রুটটা বসে গেল, তাহলে আমি কি করব? তাহলে আমি
পাঠাবো না? তখন কি হবে? তখন আমাকে একটা রুটকে পাঠাতে হবে, সেটা আমি পরে আসছি, এটা এখানে এসেছি। দ্যাট শুড বি মাই ফিজিবল সাকসেসর। सेकंड प्रायोरिटी रूट, मतलब सक्सेसर जो रूट, जो जिस रूट को हम सक्सेसर बोला है उसके जस्ट नेक्स्ट जो रूट होगा वही होगा मेरा फिजिबल सक्सेसर। मतलब এখানে আমাকে নতুন করে ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে না যে সাকসেসর যদি ফেল করে তাহলে কোন রুটটা আমার ফিজিবल सक्सेसर হবে। मेरे को यहाँ पर रिकैलकुलेशन का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब मैं पहली बार कैलकुलेट किया है तो तब मैंने निकल चुका है कि ये लोएस्ट कॉस्ट का है, उसके बाद और एक कॉस्ट का रूट है। तो अगर लोएस्ट कॉस्ट रूट फेल हो जाएगा तो उसका नेक्स्ट जो बगल में जो रूट होगा, नेक्स्ट जो रूट होगा वही मेरा सही रूट होगा। उसके बाद उसको कहेंगे हम फिजिबल सक्सेसर। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर, क्लियर। Yes, sir. Manish? Yes, sir. Okay. Now some terms are attached here in topology table. The first is the feasible distance. ये जो successor root है, that root is my feasible distance because this is the lowest calculated metric value. This FD, we can identify which root should be my successor root. मतलब जब भी हम तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करेंगे তো ওই রুট को ইস্তেমাল करके কমিউনিকেট करेंगे। যখনই আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো, কমিউনিকেট করব, তখনই আমি ওই রুটটাকেই ইউজ করব। যদি কোনো কারণে এই রুটটা ফেল করে তাহলে প্রায়োরিটি অনুযায়ী ওর পরের যে রুটটা আছে, মানে যেটার পরেই সাকসেসর রুট ছিল, সেকেন্ড লোয়েস্ট রুট মেট্রিক যেটা, যে রুটটা, সেই রুটটা হচ্ছে আমার ফিজিবল সাকসেসর রুট। তাহলে ফিজিবল ডিসটেন্স হচ্ছে কোনটা, যেটা আমার সাকসেসর রুটটাকে আইডেন্টিফাই করাচ্ছে যে দিস ইজ দ্য লোয়েস্ট মেট্রিক ডিসটেন্স, সো দিস রুট ইজ আইডিয়াল ফর ইউ and this route is called as successor route. Is it clear? समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट जो है रूट सोर्स। रूट सोर्स क्या है? The source of the root is the identification number of the router that originally advertised that route. हर एक राउटर, जितना भी राउटर है वो तो एडवर्टाइज करेंगे, भाई मेरे पास ये रूट है, तो ये तुमको डाल दिया, तुम्हारे पास से रूट भी मेरे पास आएगा। तो ये सब कुछ है रूट सोर्स कि कौन सा रूट के थ्रू से कौन सा नेटवर्क कम्युनिकेट जुड़ा हुआ है। सो ऑल दीज आर कम्स अंडर द रूट सोर्स। नेक्स्ट इज द रिपोर्टेड डिस्टेंस, RD. What is it? The RD of the path is the distance that an adjacent neighbor reports to a specific destination. Reported distance मतलब होता है जो वैल्यू पर्टिकुलर एक EIGRP राउटर रिपोर्ट कर रहा है कि मेरा मेट्रिक वैल्यू ये है, मेरे साथ ये रूट है भाई, मेरा मेट्रिक कैलकुलेशन ये है, जस्ट इट फॉरवर्ड्स द इंफॉर्मेशन। मतलब मैं एक राउटर हूँ EIGRP, मेरे साथ मनीष एक राउटर है, बिभू एक राउटर है। तो मनीष हमको बोल रहा है कि भाई मेरे पास ये राउटर है, मेरे पास ये है, ये इंफॉर्मेशन है, हम तुमको डाल रहा है, मेरा जो मेट्रिक वैल्यू है ये है। सो ये जस्ट एज इफ these two routers are reporting to me that this is my this is my information attached all the networks with me, as if ये रिपोर्ट कर रहा है कि मेरे पास ये है भाई, ये देख लो। सो दैट इज कॉल्ड द रिपोर्टेड डिस्टेंस। जो मेरे साथ जुड़ा हुआ जो मेट्रिक वैल्यू है हम तुमको भेज दिया भाई। मतलब एक EIG राउटर दूसरा जो EIG राउटर है, EIGRP राउटर होगा, उसको ये भेज रहा है कि भाई मेरा डिस्टेंस वैल्यू ये, मेरा मेट्रिक ये है, ये ले लो। मतलब मेरे समझ लो कि मेरे मेट्रिक वैल्यू है 5, आई हैव कैलकुलेटेड माई सेल्फ एज 5। मनीष एक राउटर है, वो एडवर्टाइज हमको क्या कर दिया कि मनीष के पास जो मेट्रिक है वो 50 है,
तो अल्टीमेटली मेरे थ्रू से जब कोई नेटवर्क यहाँ से हम भेजेंगे तो उसका डिस्टेंस क्या होगा 50 प्लस 5 55. So that should be my advertised distance. So this is the reported distance. Reported simple ये मान लो कि ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि भाई मेरा ये है, भाई मेरा ये है. That is called the reported distance. सर Next is प्लस the, 5 किस चीज का हुआ सर? क्योंकि मेरा तो एक मेट्रिक वैल्यू है ना, समझ लो. बिबू है इधर, तुम मनीष हो इधर. मनीष हमको बोला कि सर मेरा पास मेरा जो मेट्रिक वैल्यू है ये 50, मतलब वो रिपोर्ट कर रहा है कि मेरा 50 ये जो आ रहा है ये आरडी रिपोर्टेड डिस्टेंस मनीष के पास से मेरे पास आया. मेरा मेट्रिक वैल्यू कितना है 5, ऑलरेडी आई हैव कैलकुलेटेड फॉर एग्जांपल. तो तब हमने जब बिबू के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो बिबू के हम क्या भेजेंगे कि मेरा मेट्रिक वैल्यू क्या है 50 प्लस 5 55. तो बिबू के पास जब मेरे मेट्रिक वैल्यू मिलेगा तो उसको वहां पर मिलेगा 55. दैट इज द, इज इट क्लियर? यस सर. क्योंकि हर एक जितना भी जीआरपी राउटर है उसका भी तो एक मेट्रिक वैल्यू होगा, उसका जो रूट कैलकुलेशन उसका तो एक मेट्रिक वैल्यू होगा. तो जब वो नेक्स्ट राउटर को रिपोर्ट करेंगे तो उसके पास जो है उसके साथ खुद का जो रिपोर्ट वैल्यू है वो जुड़कर वो उसके पास भेजेंगे. তোমার কাছে যত আছে তোমারও তো একটা ভ্যালু আছে রে ভাই, তুমি তো একটা ইআইজিআরপি রাউটার. এবার তোমার সঙ্গে কানেক্টেড হচ্ছে মনীষ. মনীষ আমাকে কি পাঠালো, বলো আমার রিপোর্টেড ভ্যালু হচ্ছে 50, আমার নিজের কত 5. তাহলে আমি যখন বিভুকে পাঠাবো তাহলে কত পাঠাবো, ওই 50 পাঠাবো, তার সঙ্গে আমার 5টাকে জুড়ে দেবো, দিয়ে বলবো আমার রিপোর্টেড ভ্যালু 55. দ্যাট ইজ হ্যাপনিং হিয়ার. আমি কি বোঝাতে পারলাম ব্যাপারটা? यस सर. ওকে. নেক্সট হচ্ছে इंटरफेस इंफॉर्मेशन. এই इंटरफेस इट इज वेरी इजी. তোমার যতগুলো डिस्टेंस আছে, जितना भी तुम्हारे पास डिस्टेंसेस है, डिस्टेंस मतलब कनेक्टिविटी है, सबका इंफॉर्मेशन ये इंटरफेस इंफॉर्मेशन में चले आएगा. जितना भी इंटरफेसेस होगा उसके साथ जितना भी नेटवर्क जुड़ा हुआ रहेगा सबका इंफॉर्मेशन यहाँ पर चला आएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज रूट स्टेटस रहेगा. दैट इज वेरी वाइटल. रूट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर, उसका रूट का अब स्टेटस क्या है. स्टेटस मतलब अगर तुम देखो कि वहां पर पी लिखा हुआ है पैसिव, मतलब वो दैट रूट इज रेडी टू ट्रांसमिट द डेटा. वेरी सिंपल वे समझ लो कि भाई ये स्टेट, ये जो रूट है ये रूट पैसिव, मतलब दिस इज रेडी टू डेटा फॉर ट्रांसमिशन पर्पस. बट व्हिच द रूट व्हिच विल बी मार्क्ड एज एक्टिव means it starting to be the passive. मतलब वो बंद था, ऑफ था, अब वो पैसिव होने के लिए रेडी हो रहा है. मतलब वो एक्टिव हो रहा है पैसिव होने के लिए. वो एक्टिव हो रहा है पैसिव होने के लिए, मतलब काम करने के लिए वो उसको खुद, जैसे कि सिस्टम में हम कहते हैं ना बूटिंग हो रहा है. इट इज नॉट बूटिंग, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल. আমরা যেমন বলি একটা মেশিন চালু করলেই সঙ্গে সঙ্গে একটা মেশিন চালু আছে, one machine is running, the desktop environment is there, I am working with the say with some Word, Excel, PowerPoint like that. It means the system is passive. But when we PC, it starts booting, and after booting it will be ready for me. So that time that PC is called in active state. मतलब इट इज रेडी नहीं, अभी तक रेडी नहीं है, लेकिन रेडी होने के लिए स्टेप, ये प्रोसेस इसका खुद का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया. समझ में आया? कोई भी रूट पैसिव होगा मतलब वो रूट चालू है, उस रूट के थ्रू से तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, डेटा सेंड कर सकते हो. बट कोई भी रूट एक्टिव होगा, इसके मतलब वो एक्टिव हो रहा है, मतलब वो अभी तक बंद था, ऑफ था, अब वो उसको आप करने का, स्टेप बाय स्टेप आप करने के लिए सोच रहा है. इट हैज बीन स्टार्टिंग टू अपग्रेड इटसेल्फ. सो दैट इज कॉल्ड द रूट स्टेटस. एम आई क्लियर? सर ये किस सिचुएशन में होता है सर? देखो ऐसा होता है कि मेरे पास 4 रूट्स हैं, मैं एक एजीआरपी हूं, मेरे साथ 4 रूट्स जुड़ा हुआ है. तो 2 रूट पैसिव था, 2 रूट बंद था, कोई भी तरह लिंक डाउन था.
तो हो सकता है अब लिंक चले आए तो तब जाके ये इंटरफेस आप हो रहा है, मतलब ये रूट आप हो रहा है मेरा राउटिंग टेबल में। So then at that moment that will be marked as active। उसके बाद ये फुल चालू हो गया, मतलब लिंक चालू है, तो तब वो जाके पैसिव हो जाएगा। एक्टिव से राउटर को पता चलता है अच्छा ये लिंक रेडी नहीं था, अब रेडी हो रहा है, और पैसिव के मतलब ओ ये तो रेडी है। दैट इज द ओके सर। मतलब और भी इजी तरीके में सोचो तो दैट विल बी बेनिफिटेड। जैसे कि एक ग्रीन सिग्नल है, मतलब थ्रू ट्रेन वहां से जाएगा, और एक रेड सिग्नल था, वो ऑरेंज हुआ, मतलब ट्रेन जब हॉर्न दे रहा है, मतलब वो चढ़ने के लिए रेडी है, वो स्टेशन लीव करने के लिए रेडी है, ये है एक्टिव। और पैसिव मतलब एक लाइन थ्रू है, ग्रीन सिग्नल है, मतलब वहां से थ्रू से चला जाएगा, वो लाइन क्लियर है। समझ में आया? यस सर। ओके। राउटिंग टेबल तो तुम्हारे पास हो, जो बेस्ट रूट होगा, डुअल एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होगा, उससे तुमको बेस्ट रूट को पता चलेगा। जो बेस्ट रूट मतलब उस रूट को फॉलो करके तुमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। दैट शुड बी द राउटिंग टेबल। नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो मैंने अभी बताया, ये सक्सेसर फिजिबल सक्सेसर को बात हमने बोल दिया। नेक्स्ट इज स्टक इन एक्टिव रूट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टक इन एक्टिव रूट्स, if one or more routers to which a query is sent do not respond with a reply within an active time of 180 seconds। समझ लो एक या दो রাউটার है, একটা বা দুটো বা রাউটার বা তার বেশি রাউটার আছে, এবার তুমি তার কাছে কোনো কোয়েরি পাঠিয়েছো, তার কাছে বা তাদের কাছে তুমি কোয়েরি পাঠিয়েছো, অলরেডি 180 সেকেন্ড চলে গেছে, ইলাপস করে গেছে, টাইম চলে গেছে, তখনও কোনো মানে উত্তর নেই। The root or roots in question are placed in stuck in active state। তখন কি হয়, তখন এই টোটাল রুটটা রাউটিং টেবিলে ইনফরমেশনটা থাকে যে এই স্টেটটা হয়ে গেছে স্টাক ইন एक्टिव। स्टक इन एक्टिव मतलब इसका कोई पता नहीं है, मैंने तो बोल दिया, वहां से तो कोई रिप्लाई नहीं आया। When this happens, EIGRP clears the neighbors that did not send a reply and logs stuck in active error message for the routes that went active। जब ऐसा कोई सिचुएशन आएगा कि एक या मोर देन वन राउटर के पास कोई भी क्वेरी भेज दिया गया, लेकिन 180 सेकंड के बाद फिर भी वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तब जाके एक EIGRP राउटर उसका जो नेबर होगा सबके पास ये इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि भाई ये रूट और ये इतना ये रूट, अगर वन मोर देन वन होगा तो ये रूट ऑलरेडी इन स्टक इन एक्टिव मैसेज भेजेंगे, so please don't send further query to these routers। तो जब ये राउटिंग इस टेबल में आ रहा है ना, तो तब जो बाकी जो EIGRP राउटर उसको पता चलता है अच्छा भाई इसका ये रूट का कोई खोज में नहीं मिल रहा है, तो छोड़ दो, इस रूट में कोई डेटा मत भेजो, इसके रूट में कोई क्वेरी मत भेजो। ऐसे पता चलता है हर एक राउटर को। स्टक इन एक्टिव रूट्स इसको कहते हैं। एम आई क्लियर? यस सर। বাকিরা বুঝতে পেরেছো কি ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। মানে সোজা কথা হচ্ছে আমি একজনকে বা দুজনকে আমি জানতে চেয়েছি কোয়েরিটা, এই ধরো যে তোমাদের এই গুগল ক্লাসরুম চলছে, এবার আমি কি করলাম, আমি বললাম যে বিভু তুমি এই উত্তরটা বলো, সে আমাদের কি বলে सजीद ये बोलो, लेकिन क्या देखला 180 सेकंड हो गया, अभी तक उन दोनों के पास से कोई इंफॉर्मेशन, कोई आंसर नहीं, रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तब जाके हम बाकी लोगों को बोल दिया कि भाई उस दोनों शायद डिस्कनेक्टेड हो गया, छोड़ दो उसको, उसके साथ बात मत करो, क्लास करो। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। इज इट क्लियर? तो 180 सेकंड के बाद अगर रिस्पॉन्स आता है तो नहीं, 180 सेकंड्स के बाद रिस्पॉन्स नहीं आएगा, 180 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली स्टक इन एक्टिव हो जाएगा स्टेट,
फिर से जाके उसको लिंक को ऑफ करना पड़ेगा। लिंक अगर ऑफ हो जाएगा, फिर से जाके ये इंफॉर्मेशन उस राउट के तो एडवर्टाइज होगा, वो हेलो मैसेज आएगा ऑटोमेटिकली कि ये लिंक ऑफ हो गया। फिर से ये डेटाबेस बनेगा, फिर से ये सब लिंक सबके पास पता चले जाएगा, तो वो एक्सचेंज ऑफ डेटाबेस होगा, तो सबके पास पता चलेगा। हो सकता है ऐसा तो हो ही सकता है टेक्निकली कि कोई लिंक अचानक डाउन हो गया किसी भी तरह, तो फिर सर से जो हाँ बोलो। सर जो लिंक अप होता है वो मैनुअली करना पड़ता है क्या? नहीं, हर वक्त मैनुअली नहीं होता है। समझ लो तुम्हारा या मेरे पास ये चल रहा है, तो किसी भी तरह बीच में कोई नेटवर्क बंद हो गया, तो फिर से उन लोगों ने चालू कर दिया, तो तुम्हारा तो चालू ही है लाइन। ऐसा भी होता है, और ऐसा भी होता है कि बीच में, जैसे कि उस दिन उस क्लास में रूम में हुआ, मैंने क्लास ले रहे थे, अचानक 2 मिनट के लिए चला गया था, तो फिर से हमको कनेक्ट करके जोड़ना पड़ा। तो वही हिसाब से वही भी हो सकता है। दो चीज भी हो सकता है। तुमको नहीं आप करना है तो ऑटोमेटिक आप हो गया। अगर ये खुद जो राउटर में होगा, तब जाके उसको तो आप करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर को करने, फिर से आप करने के बाद ऑटोमेटिकली ये हेलो मैसेज भेजेंगे, तब जाके फिर से बाकी जो राउटर्स है उसके पास ये तो हेलो मैसेज चलेगा, वो एक्सचेंज करेंगे, फिर से चालू हो जाएगा। फिर से रूट कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ये रूट सक्सेसर रूट है या फिजिबल सक्सेसर है, सब कुछ पता चल चल जाएगा। मतलब पूरा प्रोसेस नया तौर से शुरू होगा। सेम थिंग विल रिपीट। क्लियर? यस सर। ওকে, আচ্ছা এইবার আমি তোমার এটাতে যাচ্ছি, একটু প্র্যাকটিক্যালে যাচ্ছি। এই নোটটা আমি আজকে আপলোড করে দেবো, বিকেলে করে দেবো। আমি কালকে কিছু নোট আপলোড করেছি, 2টো নোট দেখেছো কি? ফোরামে করেছি, কিন্তু এখানে নয়, মানে গুগল ক্লাসরুমে না, আমি কিন্তু ফোরামে নোট আপলোড করে দিই, ওখানে আমি ট্র্যাকটা রাখতে পারি। सर देख लेंगे आज। देख लिया, देखा। ओके, उसके बाद ये जो पुराना था वो एसपीएफ का, वो सेम, इसके अंदर कुछ है कि नहीं, देखिए देखो इसके अंदर, देख लिया डेस्कटॉप, इसका कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक है। ओके, हाँ इसके बाद कुछ है कि इसके अंदर, देख ले। हाँ, इसको सबको उठाना पड़ेगा, और नहीं उठाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, एजीआईपी हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, नो इश्यूज देयर। ये सब कुछ रेडी है, देखो। समझ लो, एज वैल्यू 100 डाल दिया, चला है। अब देखो, ये है राउटर 1, इसके साथ जुड़ा हुआ कि कौन सा नेटवर्क है बोलो? 192.168.10.0 है। कौन सा नेटवर्क है इसके साथ? 192.168.10.128। सर ये ओएसपीएफ से इजी है ना? हाँ, ओएसपीएफ से तो इजी होगा वहां पर। हाँ, यहाँ पर तुम्हारा जो होता है, सबनेट मास्क की दे सकते हो, वाइल्ड कार्ड मास्किंग भी दे सकते हो, लेकिन ओएसपीएफ में वाइल्ड कार्ड मास्किंग मस्ट फर्स्ट। सेकंड है, ओएसपीएफ में तुमको एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है। वहां पर अगर एनबीए में होगा, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस ओएसपीएफ टोपोलॉजी होगा, तो वहां पर तुमको डीआर बीडीआर सब कुछ करना पड़ेगा, डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, ये सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर उसका कोई बात ही नहीं है। कंप्लीट, इसमें कंप्लीट कर दिया हमने। अब चलो इस राउटर में,
यहाँ पर कौन सा नेटवर्क, पहले नेटवर्क 10.64 था। उसके बाद क्या था, ये था 192। और कौन सा है, 192 168.10.132 कंप्लीट। कौन सा नेटवर्क है, 192.168.10.96 नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है, हो गया मेरा काम खत्म। अब चलो राउटर 1 के पास जाओ। देख लो क्यों, ये बताओ क्यों ओएसपीएफ, ये ओएसपीएफ हटा नहीं गया, ओएसपीएफ हिडन हो गया क्योंकि ओएसपीएफ का एडी वैल्यू ज्यादा है और ईआईजीआरपी का एडी वैल्यू कम है। इसीलिए देखो यहाँ पर अभी पहले कुछ देर पहले ओएसपीएफ दिखा रहा था ओ करके, लेकिन अभी दिखा रहा है डी, मतलब डी मतलब ईआईजीआरपी। ये देखो 90, ये देखो ये जो भाया था ये मेट्रिक वैल्यू है, ये है 192 कौन सा नेटवर्क से कनेक्टेड, कौन सा पोर्ट के थ्रू से यहाँ पर दिखा रहा है, देख लो R1। ओके, नाउ R2। देख लो चला है, सबके पास सब रूट चला आया देखो automatically। if I ping from here, command prompt, सर हेलो मैसेज देख सकते हैं क्या यहाँ पर? एक मिनट एक, अच्छा गेटवे, तो चले हाँ ठीक है, कुछ कमेंट लिख लो हम बोल देते हैं, कुछ कमेंट लिख लो, मेरे पास है मैं बोल दे रहा हूँ, उसको इस्तेमाल करना। सर बोलिए। पहला लिखो, कोई भी एक राउटर में जाके हम लिख देते हैं, शो आईपी EIGRP NE neighbors, show IP EIGRP neighbors। বিভু বুঝতে পারছো?
হ্যাঁ স্যার করছি, যদি আনসার খাতায় লিখছি। তুমি করো, আমি তাড়াতাড়ি করছি না, পরে তুমি আবার বলবে স্যার খুব তাড়াতাড়ি করে ধরতে পারি না। হ্যাঁ স্যার আমি এখানে লিখছি স্যার, কারণ খাতায় লিখছি। তুমি লেখো, আমি এখানে এ করে রেখে দিয়েছি, কোনো অসুবিধা নেই, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। शो आईपी EIGRP नेबर्स, मतलब হ্যাঁ স্যার পেয়েছি। नेबर टेबल को दिखना चाहिए। दिखा रहा है। नेक्स्ट कमेंट, ये तो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उसके हिसाब से ये दिखाएगा। नेक्स्ट कमेंट क्या है? शो आईपी EIGRP इंटरफेसेस। वन मोमेंट। হ্যাঁ অনুপদা, আরে আমি পরে করছি, আমি ক্লাস নিচ্ছিলাম একটু। হ্যাঁ পরে কথা বলছি। আচ্ছা ओके, देख लो। प्रोसेस यहाँ पर दिखा रहा है 100, प्रोसेस मतलब यहाँ पर ऑटोनोमस सिस्टम वैल्यू दिखा रहा है, कौन सा कनेक्टेड है उसका। देखो SRTT 530, ये देखो SRTT दिखा रहा है। नेक्स्ट कमेंट, शो, एक मिनट, शो EIGRP, সরি, শো IP EIGRP টপোলজি। ঠিক আছে, লেখা হয়ে গেলে বলবে, তারপর আমি এন্টার মারবো। তাহলে আমরা প্রথমটা দেখলাম, কি কমেন্ট দেখলাম, এই যে শো IP EIGRP নেবারস। সেকেন্ড কমেন্ট আমরা কি দেখলাম, শো IP EIGRP ইন্টারফেসেস। নেক্সট হচ্ছে শো IP EIGRP টপোলজি। দেখে নাও, এই দেখো এখানে ফিজিবল ডিস্টেন্স, সাকসেসর, এখানে সবই দেখাবে, তার কারণ এটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশন। It is a point to point connection, so automatically there is no multiple routes, so automatically this is a route, physical successor, this is the FD, this is the FD, so single, it is point to point connection है, इसीलिए ये देख लो, this is successor, automatically this is the FD, single line है, और this is passive, just see, this is P, because सब इंटरफेस ऑफ है, लिंक ऑफ है, तो इसीलिए पैसिव है, ये जो P means passive। ओके, স্যার এখানে তো बोलो बोलो बोलो। কোনগুলো যদি আপনার, তোমার কথাটা আটকে যাচ্ছে, বলো, কেটে যাচ্ছে। স্যার তখন তো লিঙ্ক থেকে দেখাবে। হ্যাঁ, তোমার যদি, তুমি যদি এটাকে মাল্টিপল লিঙ্কে করে নাও, এটা নিজে একবার করবে না বাড়িতে, কোনো অসুবিধা নেই তো, কিছু করবে না। ওই তোমাদের মনে আছে যে ছবিটা দিয়েছিলাম রিপের লোড ব্যালেন্সিং এর, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ওইটাতেই তো OSPF করবে, তাহলেই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, বুঝতে পারলে? বা OSPF বলছি, EIGRP করবে। হ্যাঁ স্যার। ওই যে 4টে রাউটার ছিল, ওই 4টে রাউটারই EIGRP করে নেবে, কোনো অসুবিধা নেই। এটা যেহেতু পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশনটা ইজি, আমরা সবসময় কেন আগে দেখাই জিনিসটা বোঝানোর জন্য। পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশন না করলে, তোমাকে যদি আগে গিয়ে আমি ক্লামজি নেটওয়ার্কটা দেখাই না, তখন কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে, তোমার ধরতে পারবে না। ওই জন্য আগেটা করে দেখে নাও যে কোনটা কি দেখাচ্ছে, তাহলে ডিফারেন্সটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট করার পর যখন ওইটা করবে, তখন তুমি ডিফারেন্সটা বুঝবে যে এইটার সঙ্গে ওটা ডিফারেন্স কোথায় আসছে, এন্ট্রি গুলো। পয়েন্ট টু পয়েন্ট ইজ দ্য simplest form of the network design.
उसके बाद चले जाओ होमवर्क में ये करो, वो जो रीप का जो लोड बैलेंसिंग में था ना, R1 R2 R3 R4 जैसे स्क्वायर करके उसको या जीआरपी में डायग्राम ছিল ওইটা তোমরা করবে, that will be your homework and you will see just मतलब तुमको देखना पड़ेगा कि भाई मेरे यह जो कमेंट है कि शो आईपी आईजीआरपी टोपोलॉजी, और उस वहां पे भी हम लिखेंगे कि शो आईपी आईजीआरपি टोपोलॉजी, तो दोनों में अंतर क्या है, দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি আসছে। এখানে প্লেন সবকটা দেখাবে, এটা সবকটাই তাই দেখাবে, ফিজিবল ডিসটেন্সই দেখাবে, এখানে কোনো ফিজিবল সাকসেসর বা এগুলো কিছু আসবে না। কেন আসবে না? বিকজ এগুলো পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশন, একটা করে রুট তো দেওয়াই আছে, তোমার তো দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ, সো অটোমেটিক্যালি ইট উইল শো দ্যাট। ক্লিয়ার মনীষ, ইজ ইট यस ক্লিয়ার? सर, यस सर। বাকি বাকি যারা আছো তোমরা বুঝতে পারছো কি পারছো না? বাকি কারা রয়েছে? বিভু মনীষ খালি বলছে, রোহিত রয়েছে, সায়ন Yes, রয়েছে, sir. Yes, sir. শুভদীপ উত্তর দিল। সুদীপ্তর কি গল্প? সুদীপ্ত, वेरी सुदीप्त। यस सर, यस सर। अच्छा शाहिद, तुम कहाँ हो? आई एम आस्किंग यू। वेरी शाहिद। सायन, সায়ন, স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার, এরা কি? তোমাদের ব্যাচটা তো সিরিয়াস ছিল আমি জানি, মানে সব টিচার যারা আগে ক্লাস নিয়েছে তারা বলেছে। ওকে, নেক্সট শো আইপি ইআইজিআরপি স্পেস, সম্ভবত এই কমেন্টটা এখানে চলবে না, দেখে নিচ্ছি আমি। হ্যাঁ, ট্রাফিক কমেন্টটা চলবে। দেখে নাও ট্রাফিক কমেন্টে কি কি দেখিয়ে দিচ্ছে। हेलो सेंड करेছে, रिसीव करेছে, देखे नाओ। जो मैंने अभी मनीष ने मेरे को पूछा था ना, अभी तो मनीष ने मेरे को पूछा था ट्रैफिक के बारे में। यस सर। हाँ देख लो। और एक है, ये भी तुम दे सकते हो, ऑटोनोमस सिस्टम स्पेसिफाई कर सकते हो। हाँ ये अब जहाँ पर दो मल्टीपल ऑटोनोमस होगा तो वहां पर ये दे सकते हो, लेकिन ये भी सिंटेक्स है। सर हम्म, तो यहाँ पे हेलो सेंड रिसीव से 365 बाय 162, तो इसका मतलब क्या है? मतलब सेंड हुआ 365 हेलो मैसेज, और ये है 162 उसके पास चला आया, उसका एक्नॉलेजमेंट, वो रिसीव किया, एक्नॉलेजमेंट नहीं, दूसरी तरफ से आया। अरे भाई मैं जैसे तुमको हेलो मैसेज भेजेंगे तो तुम भी तो भेजेंगे ना मेरे को, दैट इज द। सर यहाँ पे तो 3 राउटर है ना, तो 365 टाइम्स क्यों सेंड किया? 365 162 मतलब होता है कि वो हर वक्त हर एक लिंक के थ्रू से वो जनरेट करेंगे, वो एक बार जनरेट करेंगे, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दूसरी बार करेंगे, हो सकता है 3 या तुम 4 राउटर यहाँ पर बिठा दो ना, वो नो प्रॉब्लम, तुम 2 राउटर बिठा दो, देखो कितना बार आएगा हेलो मैसेज। इसके मतलब ये नहीं कि एक राउटर एक ही हेलो मैसेज भेजेंगे। ओके ओके, जैसे कि ये नीचे में है ना एक्नॉलेजमेंट सेंट एंड रिसीव, देखो सब देखो 3/4 मतलब 3 सेंड किया है, उसको मिला है 4। सर ट्रैफिक 100 का मतलब क्या है सर? 100 ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा किसका ट्रैफिक के बारे में हमको जानकारी चाहिए ना, 100 ऑटोनोमस सिस्टम वाला जो ईआईजीआरपी है, इसीलिए 100 ऑटोनोमस सिस्टम तुम ये दे सकते हो और यहाँ पर नहीं भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम इज देयर, बट स्पेसिफाई ये सिंटेक्स है बेसिकली, ये देना चाहिए।
सर अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे स्पेसिफाई कर रहे हैं तो मतलब दूसरे मतलब जो नेटवर्क है उसका भी मतलब यहाँ से देख सकते हैं क्या? नहीं, ये है जो ऑटोनोमस सिस्टम में तुम बैठ के ये काम कर रहे हो इसका वैल्यू देना। देखो ना, ये तुम यहाँ पर क्या दिए थे क्या? तो नहीं दिए थे। वहां पर भी चला है क्योंकि डिफॉल्ट तो यही चल रहा है। एक ही तो एज तुम्हारे पास है रे भाई। तुम्हारा कहने का मतलब है सर ये 100 हम क्यों दे, यही तो। यस सर। ओके, समझ लो तुम्हारे पास 100 का एक ऑटोनोमस सिस्टम है, दूसरी तरफ 110 एक ऑटोनोमस सिस्टम चल रहा है, और दोनों के बीच बीजीपी है जिसके थ्रू से दो नेटवर्क कम्युनिकेट कर सकता है। तो तब जाके तो तुम यहाँ पे बैठ के तुम देख सकते हो कि 110 में क्या हो रहा है, या 110 में बैठ के तुम देख सकते हो 100 में क्या ट्रैफिक चल रहा है। इसीलिए ये दे रहा है कि तुम कौन सा ऑटोनोमस का सिस्टम का ट्रैफिक के बारे में जानकारी तुम्हारे पास चाहिए। समझ में आया? यस सर, यस सर। दो স্যার नेटवर्क होगा। ওটা हाँ আর बोलो। স্যার ওটা ওটা জানতে গেলে ওই যে তার আগের কমেন্টটা মানে শুধু শো আইপি ইআইজিআরপি ট্রাফিক এটা দেবো করলে তুমি দিয়ে ওখানে। যেটাতে বসে আছো সেই অটোনমাস সিস্টেমকেই দেখিয়ে দেবে ডিফল্ট। হ্যাঁ কিন্তু স্যার এটা কেন ডিফল্ট। দিতে বলছে, এজ ভ্যালুটা কেন দিতে বলছে? সাপোজ তোমার কাছে একটা অটোনমাস সিস্টেম আছে 100, একটা আছে 200, এবার দুটোর মধ্যে কমিউনিকেশন করে দিচ্ছে কে? বিজিপি। তার ফলে কি হচ্ছে, তোমার তো দুটো দুটো লিঙ্কড হয়ে গেল। তার মানে তুমি 200তে বসে 100 ট্রাফিক জানতে চাইতে পারো, আবার 100 বসে 200 ট্রাফিককে জানতে চাইতে পারো। তখন তো হ্যাঁ তোমাকে এই অটোনমাস সিস্টেমটা স্পেসিফাই না করলে তোমার চলবে না। তাই এজ ভ্যালুটা এখানে দিতে হয়। হ্যাঁ समझ में आया? হুম? আচ্ছা আচ্ছা এই यस এই सर। কথা। হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার। So this is the EIGRP. হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। This is the EIGRP, और कुछ नहीं। ठीक है? सर तो ओएसपीएफ क्यों क्यों यूज करते हैं अगर ईआईजीआरपी मतलब अगर अच्छा है सर? EIGRP देखो, पहला बात ये है, OSPF लूप तुम्हारा प्रोप्रिएटरशिप नहीं है, इट इज ओपन टू ऑल। दूसरा ये है कि OSPF पहले पहला प्रोप्रिएटरशिप नहीं है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। तुम सेकंड है कि OSPF जो चाहे जिस चाहे जिसमें तुम इस्तेमाल करते हो, जो चाहे तुम्हारा राउटर हो, वो जूनिपर हो, वो नॉटेल का हो, जिसका होगा तुम उसका राउटर में OSPF इस्तेमाल कर सकते हो। बट इन केस ऑफ EIGRP दैट इज नॉट वैलिड, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली सिस्को प्रोप्रिएटरशिप में होता है। समझ में आया? ये दो प्राइमरी पॉइंट है कि इसका प्रोप्रिएटरशिप है। सेकंड, ये जो चाहे तुम्हारे पास जितना भी राउटर है मल्टीपल वेंडर में, ये नहीं चलेगा, जो OSPF में चलेगा, OSPF में चलेगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और OSPF is totally built on link state protocol, but it is a combination of distance vector का कुछ नेगेटिव पार्ट्स यहाँ पर रहेगा। नेगेटिव मतलब वो पॉजिटिव के हिसाब से आएगा, लेकिन लिंक स्टेट के हिसाब से तुम अगर देखोगे तो वो पार्ट पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि लिंक स्टेट में क्या होता है कि सब डेटाबेस सबके पास चला आता है, मतलब OSPF में। तो हर एक के पास, तुम्हारे पास अगर 10 EIGRP राउटर होगा तो हर एक के पास 10 EIGRP का इंफॉर्मेशन रहेगा। लेकिन देखो यहाँ पर EIGRP जब हम बनाया तो हम एक EIGRP राउटर के साथ जितना नेटवर्क जुड़ा हुआ है उसको इन्फॉर्म किया। मतलब मेरे को डिपेंड होना पड़ता है मेरा नेबर के ऊपर। जो नेबर जो मुझको भेजेंगे तो वही सही है, उसके हिसाब से हम चलेंगे। बट OSPF पे वैसा नहीं होता है। नेबर से तो मिला, दूसरी तरफ अनदर हेलो ब्रॉडकास्ट मेरे पास आया, तो तब जाके हम अपडेट कर लिया मेरे डेटाबेस को। तो इसीलिए OSPF चलता है। OSPF इज इम्पोर्टेंट। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? बोलो। यस सर। ओके, तो होमवर्क वो था, हम दे सर दिया। क्वेश्चन है बोलो बोलो। सर, हम लोग ने जब राउटर EIGRP 100 डाला तो उसके बाद नेटवर्क फिर नेटवर्क डाला मतलब, तो अगर वहाँ पे हम लोग ने गलत नेटवर्क डाल दिया तो उसको रिमूव कैसे करेंगे?
उस जो भी कमेंट गलत होगा उसके आगे नो बिठा दो, नो नो नेटवर्क आईपी, नो। ओके सर। ठीक है, तुम समझ लो कि तुम जो नेटवर्क यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, কোথায় দিল তুমি? এই যে এইখানে, এই যে দেখছো তো এইটা, এটা লিখেছো, হ্যাঁ तुम्हारा कहने का मतलब यहाँ पर कोई गलत नेटवर्क डाल दिया, হ্যাঁ नो স্যার। प्रॉब्लम, यू गो टू द फ्रंट, टाइप नेटवर्क जो दे दिया, दैट्स ऑल। मतलब कमेंट ये रहेगा, ওকে। समझ लो। INT सॉरी F0/0, उसके अंदर चला जाओ, तो R1 में F0/0 में क्या है, ये है, जस्ट टाइप देयर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कॉन्फ़िगर एग्जिट, हाँ वो भी हो सकता है, समझ लो कोई आईपी यहाँ पर कोई इंटरफेस में डाल दिया, तुम रॉन्गली पास, रॉन्ग आईपी डाल दिया, तो उसके पहले जाके नो बिठा दो, नो आईपी एड्रेस सच, जो भी कमेंट गलत होगा तो उसके पहले बिठा दो नो, स्पेस देके, बाकी जो कमेंट रहा वो से हम दिखा देंगे, तुम्हारा कंफ्यूजन समझ में यहाँ पर आए। IGRP, ओ सॉरी सॉरी, चलो लिखो नो नेटवर्क, जो नेटवर्क तुम डाल दिया था ये ऐसे ही यहाँ पर बिठा दो, एंटर मारो, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये सिर्फ इसके लिए नहीं, जो भी कमेंट तुम डाल रहे हो रॉन्ग, उसके पहले नो बिठा दो, उसके बाद वो कमेंट पूरा जो है वो लिख लो, लिख के एंटर मारो, वो नलीफाई हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। बस दैट इज द, दिस इज तुम्हारा पूरा AIGRP है। सब चल रहा है। सर IGRP भी होगा हम लोग का? नहीं, IGRP ऑब्सोलीट हो गया, इसीलिए IGRP नहीं है, और हर एक राउटर में IGRP नहीं चलता है। IGRP के ऊपर डिपेंड करके तो ये IGRP बनाया है, लेकिन IGRP ऑब्सोलीट हो गया, और IGRP मैक्सिमम राउटर में अब नहीं चलता है। तो IGRP हाइब्रिड था क्या? नहीं, वो डिस्टेंस वेक्टर था। हाँ। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो होमवर्क क्या रहेगा, वो जो लोड बैलेंसिंग का जो होगा उसमें जाके IGRP कॉन्फ़िगर करना, वो आईपी टाइपी सेम रखो, या तुम चाहे चेंज करो, नो प्रॉब्लम इज देयर, अगर तुम चाहो ये आईपी भी डाल सकते हो वहां पर, दैट फुली डिपेंड्स ऑन यू, नो प्रॉब्लम इज देयर। ओके, तो नेक्स्ट हम एक टॉपिक हम स्टार्ट करें क्या? हम्म, यस सर। ओके, एक मिनट रुको।
Now, what is VLAN, virtual LAN? আমাকে একটা জিনিস উত্তর দাও তো, হোয়াট ইজ ল্যান? व्हाट इज लैन? सर लोकल एरिया नेटवर्क। गुड, उसके अंदर क्या होता है ये बताओ। अगर तुमको कहा गया कि भाई लैन के बारे में बताओ, तो तुम पूरा नाम बोल दिया। ये तो सबको पता है। उसको काम करने का तरीका क्या है, कुछ तो कुछ बोलना पड़ेगा तुमको। তোমাদের তো সেটা বলতে হবে যে ল্যান জিনিসটা কি। তুমি যদি ল্যান না বুঝো, ভিল্যান বুঝবে কি করে? যে ল্যানে যেটা হয়, ল্যানের যেটা নেগেটিভ পয়েন্ট, সেই নেগেটিভ পয়েন্টটাকে রেকটিফাই করে আমার ভালো মানে পজিটিভ দিকে নিয়ে আসা হলো, সেটাই হচ্ছে ল্যান। ল্যানে লিমিটেড এরিয়া। আর কিছু? তোমরা যে পয়েন্টগুলো বলছো ল্যানের ক্ষেত্রে, those are very very basic of the basic points, but you are from BSc honors, so I expect more than that. तुम जो बोल रहे हो ना, वो आंसर मेरे सन ने दे दिया, क्योंकि उसका जो क्लास 10 में थोड़ा बहुत कंप्यूटर के पार्ट था, वहां पर लैन था. So that is not sufficient here, because you are from BSc honors background, so something you have to say something more than that, more technically. मतलब what you are talking about, that should be technical in all respect. এটা তো সবাই জানে যে ল্যান হচ্ছে ছোট এরিয়ার মধ্যে চলে, ল্যানের লিমিটেশন আছে, এভরিথিং, anybody knows it. One moment. Hello. Hello. না, আমি একটু ক্লাসে রয়েছি। বলো। Suppose in case of VLAN, I mean LAN, what is happening? তোমার একটা পিসি আছে, আমি একটা পিসি দিয়েই বোঝাচ্ছি। 24টা পোর্টের সুইচ আছে। 24টা পোর্টের সুইচে আমি যদি তোমাকে একটু পিকচারটা দেখানোর চেষ্টা করি, না ঠিক আছে, আমি একটু আগে গিয়ে দেখাচ্ছি, ছবিটা নেই। সাপোজ 24টা পোর্টের একটা সুইচ আছে, সরি, 24টা पोर्ट स्विच है, पोर्ट नंबर 1 है PC1 कनेक्टेड। तुम्हारे पास एक 24 पोर्ट का स्विच है, उसका जो पोर्ट नंबर 1 है उसमें PC1 कनेक्टेड, ऐसे करके पोर्ट नंबर 2 पोर्ट नंबर 3 सब में पीसी कनेक्टेड। तो सपोज फॉर एग्जांपल, if the PC1 sends a broadcast, so automatically that will be forwarded to each and every port. You cannot stop. তুমি একটা PC1 একটা ব্রডকাস্ট দিল, সেই ব্রডকাস্টটা প্রত্যেকটা পোর্টে ফরওয়ার্ডেড হবে। এবার ধরো সাপোজ you have a two switch, 24 port 24 port, and that is connected by a link. One switch 24 port, suppose switch 1, another is switch 2, that is linked with a cable. So automatically you have 48 switch 48 PC. So
So suppose PC1 sends the broadcasts, automatically that broadcast will propagate through to each and every ports of switch 1 and switch 2 as well. আমার PC1 থেকে একটা ব্রডকাস্ট দিলাম, সেই ব্রডকাস্টটা সুইচ 1 এর যতগুলো পোর্ট আছে এক্সেপ্ট পোর্ট 1 আর সুইচ 2 এর যতগুলো পোর্ট আছে সবকটা পোর্টে কিন্তু ব্রডকাস্টটা ফরওয়ার্ডেড হবে। তার মানে it means some unnecessary traffic flow will be there, which is not required at all for switch 2. Maybe switch 2 তে হয়তো সেই ব্রডকাস্টটার দরকার নেই, but you cannot stop this broadcast because that will propagate to each and every port of the switch. That is the first demerit. It means तुम्हारे पास PC1 से एक ब्रॉडकास्ट निकल रहा है, तो समझ लो कि PC वो जो स्विच 1 है, स्विच 1 के लिए ये ब्रॉडकास्ट था, लेकिन क्या होगा अननेसेसरीली वो ट्रैफिक, वो जो ब्रॉडकास्ट वो स्विच 2 में चला जाएगा, जो कि स्विच 2 में नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो जाएगा by virtue of its nature because it is LAN. So you cannot restrict the broadcast. तुम पूछ सकते हो, আমাকে বলতে পারো স্যার এতে প্রবলেম কি? What is the problem? The problem is the bandwidth consumption and the congestion, traffic congestion. This is the number one demerits of the LAN. Second হচ্ছে you cannot put any security measure in case of LAN. Suppose তোমাদের যে PC1 আছে, I mean switch 1 আছে, switch 1 এ আমার 24টা PC আছে। এবার আমি কি করলাম, আমি একটা মেসেজকে দিলাম হচ্ছে অন্য পিসি গুলোকে আমি পাঠাচ্ছি পার্টিকুলারলি। আমি কি করতে পারি, আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি কি করে আটকাবো এই ফরওয়ার্ড হওয়াটাকে। ধরো সুইচ 1 এ আমার 24টা পোর্ট আছে আর সুইচ 2 তে 24টা পোর্ট আছে। তুমি আমাকে অ্যাডভাইস দিতে পারো যে স্যার একটা কাজ করুন, আপনি যদি চান যে সুইচ 2 তে আননেসেসারি ব্রডকাস্টটা ফরওয়ার্ড হবে না, দেন সুইচ 1 এ আপনি ক্লাস এ এর আইপি অ্যাড্রেস ইউজ করুন আর সুইচ 2 তে আপনি ক্লাস বি এর আইপি অ্যাড্রেস ইউজ করুন। বাস এই ক্লাস বি হতে পারে, ক্লাস সি হতে পারে, হোয়াট এভার, অর্থাৎ ডিফারেন্ট ক্লাসের আইপি ইউজ করুন। তাহলে কি হবে, তাহলে সুইচ এর ট্রাফিক সুইচ বি তে, সুইচ বি এর ট্রাফিক সুইচ এ তে আসবে না। মানে समझ रहा है क्या मैंने क्या बोल रहा हूँ? You got my point? यस सर। स्विच 1 में विभू सजेस्ट किया सर एक काम कीजिए, आपका तो 24 पोर्ट स्विच 1 में है तो 24 पीसीस वहां पर है और बाकी 24 जो है वो स्विच 2 में है। तो एक काम कीजिए, स्विच 1 में जितना पीसी है उसको एक क्लास में डाल दीजिए और स्विच 2 में जितना पीसी है उसको और एक क्लास में डाल दीजिए। ये सही तरीका है, तो ये कर दीजिए। तो हमने सोचा कि हाँ ये तो विभू ठीक बोला, বিভূতটা ঠিক বলেছে, তাহলে তো করে দেওয়াই যায়, তাহলে কোনো ট্রাফিক এখান থেকে ওখানে যাবে না। বাট ইজ ইট রিয়েলি সো? Is it really so? No, never. If any node, say PC for example, sends any broadcast using 255, 255, 255 and 255, so automatically that packet will flow through the networks irrespective of network you have. जो क्लास हो होने दो, लेकिन वो ब्रॉडकास्ट वो भेज दिया किसके थ्रू से, 2255 के थ्रू से, and that will flood
the packet to each and every port of switch 1 and switch 2 as well. इसीलिए ये जो 255 255 255 255 जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस एक्चुअली ये इस्तेमाल करता है सिस्को का प्रोप्रिएटरी आईपी है, ये रिजर्व्ड आईपी एड्रेस. सो इट इज कॉल्ड ऑल फ्लडेड एड्रेस. একটু পাখাটা চালিয়ে দাও. all flooded address, because if you use this address and start sending any broadcast, it will flood to each and every port you have. तुम्हारे पास अगर 3 स्विच होगा, 4 स्विच होगा, 5 स्विच होगा, जितना स्विच होगा सबका जो जितना पोर्ट होगा सबके पास ये चला जाएगा, तुम्हारा क्लास अलग होने के बावजूद भी. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. You cannot restrict, you cannot stop it from flooding. Number one. Number two, you cannot provide or put any type of security here. Suppose in the office, तुम लोग ऑफिस में हो, तो ऑफिस में तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम्हारा एक बड़ा रूम है, तो एक रूम के बीच दूर थोड़ा दूर तुम्हारे दूर से है मार्केटिंग टीम का पीसी है, कुछ दूर है अकाउंट्स का, तुम्हारा है से प्रोडक्शन का स्विच, लेकिन वो सब पीसी जाके एक ही स्विच में कनेक्टेड है. तो अगर प्रोडक्शन तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है, तुम्हारा डिपार्टमेंट का समझ लो कि 3 पीसी है, तो कोई भी पीसी से तुम्हारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन ये तुम्हारा प्रोडक्शन के बीच ही रहेगा. कोई डेटा सेंड किया गया, बट दैट विल फ्लड टू अदर पोर्ट्स आल्सो. So you cannot restrict that. No, what I am sending that should be restricted within my department also only. You cannot do this. So that is the question of security or privacy. So in case of LAN, you cannot stop broadcasting. So automatically here the congestion and the bandwidth consumption is an important factor. This is the number one demerits of LAN. And second demerit, there is no privacy or security in between the nodes which is connected in normal LAN in a switch. At a normal LAN তে যে সুইচে কানেক্টেড আছে, ধরো প্রোডাক্ট 24টা পোর্ট, এবার 3টে করে পিসি নিয়ে, একটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট, একটা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট, একটা প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট, এরকম সেট করে 3টে আছে. যদি প্রোডাকশনের কোনো একটা মেশিন প্রোডাকশনকে ডেটাটা পাঠায়, সেটা যদি চায় মার্কেটিং টিম সেটাকে টানতে, it can. तब ये सोचने लगा है सब लोग कि कैसे ये जो लैंड में रहेगा, लेकिन कैसे इसका प्रोटेक्शन, इसका प्राइवेसी को इंप्लीमेंट किया जाए, या ये जो ब्रॉडकास्ट है, ये ब्रॉडकास्ट को हम रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं कि भाई मेरा ब्रॉडकास्ट इतना दूर तक जाना चाहिए, इतना दूर ही जाओ, बाद बाकी पास जाना नहीं चाहिए तो नहीं जाओ, just to save bandwidth consumption and just to avoid the congestion control. तब जाके नया एक तरीका अपना गया, নতুন একটা পদ্ধতিকে ইমপ্লিমেন্ট করা হলো, দ্যাট ইজ দ্য VLAN, ভার্চুয়াল ল্যান. ভার্চুয়াল क्यों कहा जा रहा है, কেন বলছে ভার্চুয়াল? বিকজ এটা ল্যানের মতোই, কিন্তু ল্যান নয়. ল্যানের অনেক ফিচার এখানে পাবে, কিন্তু কিছু ফিচার পাবে না. যেমন এই ব্রডকাস্ট ফরওয়ার্ডেড হবে না, যেমন তুমি এখানে সিকিউরিটি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে, which were not possible in case of LAN. So that is why it is a concept that is called virtual LAN. Virtually it appears as a LAN, but there are some differences in between LAN and the virtual LAN. Am I clear or not? Am I clear or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. তো Yes, এইটা sir. ওকে, এইবার এইটা হচ্ছে ঘটনা. এইটা
আমি জাস্ট এই অবধি আমি আজকে বলবো, আমি ডিটেলসে ঢুকছি না, ডিটেলস আমি নেক্সট দিন ঢুকবো, ঢুকে আমি একদম ভিলান ভিটিপি সমস্তগুলো করাবো, করিয়ে নেক্সট দিন আমি একদম ভিলানের ডাইরেক্ট ল্যাবে চলে যাবো নেক্সট দিনে, মানে তোমাদের যেটা শিডিউল ক্লাস সেখানে আর কি। তো এইটা হচ্ছে ভিলানের বেসিক কনসেপ্ট। তার মানে কি হচ্ছে, যদি আমি এই পিকচারটাকে দেখি, জাস্ট এই পিকচারটাকে দেখো, আমার যখন একটা রাউটার আছে, এখানে সুইচ আছে, আমার রাউটারের এখন দরকার নেই, সে ধরে নাও এইখানে 3+3+3, এখানে কি হচ্ছে, অ্যাকাউন্টস, মার্কেটিং, ইঞ্জিনিয়ারিং এর তিনটে ডিপার্টমেন্ট আছে। সো সাপোজ এই পিসিটা থেকে কোনো একটা ইনফরমেশন ও একে দেওয়ার জন্য চাইছে, সাপোজ this PC starts sending data for this particular PC, you know what will happen, और पर्टिकुलर ये जो सर्वर है, ये पर्टिकुलर सर्वर ये अकाउंटिंग सर्वर है, तो ये सर्वर से कोई मैसेज ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है जिसको भेजना चाहिए, what will happen, if you just think about the LAN, automatically this message will transmit to each and every switch port, and it will flood to each and every group, means marketing team, marketing group, engineering group, all will accept the same packet unnecessarily. That is the flavor of the villain. Villain ने क्या किया, बोला नहीं भाई एक काम करो, ये सेग्रीगेट कर दो, ये हो सकता है कि एक स्विच में मेरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक पीसी रहेगा, हो सकता है कि इस पीसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तीनों स्विच को लेकर बनता है, लेकिन ट्रैफिक विल फ्लो पर्टिकुलरली जो जो पीसी में जाना चाहिए उसके लिए, अननेसेसरी मार्केटिंग का जो पैकेट होगा वो मार्केटिंग यहाँ से निकल के मार्केटिंग टीम के पास चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, या सर्वर में चला जाएगा। अगर इंजीनियरिंग का होगा, सर्वर ने कुछ डेटा भेज दिया तो ऑटोमेटिकली इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, या इसको भेज रहा है इसको, अननेसेसरी इट विल नॉट फ्लो टू ऑल दिस अदर्स। सो देखने में लग रहा है कि लैन, लेकिन ये लैन के माफिक है, लैन नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड VLAN, वर्चुअल LAN. Is it clear? Yes sir. ওকে, আমি আজকে এই অবধি বোঝালাম, তার একটা কারণ আছে, কারণটা হচ্ছে আমার কাছে একটা ভালো ভিডিও আছে, নেক্সট দিন ওই ভিডিওটাকে আমি চালাবো, তাতে কি দেখতে পাবে, দেখতে পাবে ভিলান ক্রিয়েটের আগে কি করে, ওটা একটা অ্যানিমেটেড, ওটা তোমরা নেটে তোমরাও পাবে নেটে, আমি ওটা দেখিয়ে দিলে তোমাদের ওটা খুঁজে বার করতে সুবিধা হবে, ওটা অ্যানিমেটেড, যখন ভিলান ক্রিয়েট হয়নি আননেসেসারি ট্রাফিক গুলো কিভাবে যাচ্ছে, আর যখন আমি ভিলান করে দিলাম তখন দেখা গেল নির্দিষ্ট ট্রাফিক নির্দিষ্ট জায়গাতেই যাচ্ছে, ওইটাকে আমি আছে আমার কাছে, কিন্তু এখন রাইট নাও আমি কোথায় আছে আমি ঠিক নেই, আমি ট্র্যাক করতে পারছি না বলে দেখালাম না, ওটা আমি নেক্সট দিন স্টার্টিং এ দেখাবো, দেখি তারপর আমি ঢুকবো সাবজেক্টে, ঠিক আছে তাহলে আমাকে শুধু একটু, আচ্ছা এটা কি বোঝা গেছে মনীষ, ये समझ में आया क्या? यस सर।